ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا، اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ متوازن غذا فراہم کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ لاپرواہی ناقابل برداشت، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو۔ اگلے 7 دنوں تک تلنگانہ بھر میں شدید سردی کی لہر، بیشتر مقامات پر درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ سے ہوگا کم۔ موسمی بخار کا خدشہ، عوام احتیاط برتیں، محکمہ موسمیات۔ BRS کے سروے پر سوال اٹھانے والے اور غلط الفاظ استعمال کرنے والے موجودہ چیف منسٹر اب کیوں ذات پات کا سروے کروا رہے؟ بالکنڈہ MLA ویمولا کا سوال کی تنقیدیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ درپلی منڈل مستقر کے سرکاری پرائمری اور ہائی اسکولوں کا کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کیا اچانک دورہ، اسٹور روم کا کیا معائنہ، صفائی کا خاص خیال اور طلباء کو متوازن غذا کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایتیں جاری کی۔ درپلی منڈل مستقر میں ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے سرکاری پرائمری اور ہائی اسکولوں کا اچانک دورہ کیا، طلباء کے لیے دوپہر کے کھانے کا مشاہدہ کیا، اسٹور روم میں رکھے چاول اور دیگر اجناس کی معیار اور ان کی مقررہ مدت کو چیک کیا۔ اساتذہ سے پوچھا کہ کیا طلباء کو روزانہ مینو کے مطابق کھانا دیا جا رہا ہے اور کیا کھانے کے معیار کی جانچ کی جا رہی ہے۔ متعلقہ رجسٹر کا مطالعہ کیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ اگر غیر معیاری چاول، دیگر اشیاء خوردنوش اور سبزیاں سپلائی کی جاتی ہیں تو اس کی اطلاع تحصیلدار کو دی جائے اور ان کی جگہ معیاری اشیاء مختص کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ طلباء کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے معاملے میں غفلت برتنے پر سخت کارروائی کی جائے گی اور کسی بھی چھوٹی شکایت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ کلکٹر نے حکم دیا کہ روزانہ اساتذہ کے ذریعے کھانے کے معیار کی جانچ کی جائے۔ اس دوران کلکٹر نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ضلع بھر کے تمام سرکاری اسکولوں میں پانی کی فراہمی اور بیت الخلاء جیسی کم سے کم بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور اگر کہیں بھی سہولیات کی کمی ہے تو فوری طور پر تجاویز پیش کی جائے تاکہ امادش اسکول کمیٹیاں کام کر سکیں۔ بعد ازاں کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے درپلی منڈل کے رامڑگو پروجیکٹ گاؤں میں IDCMS اور کوآپریٹو سوسائٹیز کے زیر اہتمام جاری اناج کے خریداری مراکز کا معائنہ کیا، خریداری مراکز پر دستیاب سہولیات کا مشاہدہ کیا اور غلے کی خریداری سے متعلق ریکارڈ چیک کیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی کی جانی چاہیے کہ کاشتکاروں کو بلوں کی بروقت ادائیگی کے لیے اناج کی وصولی مکمل ہونے کے فوراً بعد ٹیپ انٹریز کی جائے۔ اس پروگرام میں نظام آباد RTO راجندر کمار، درپلی MPDO بالا کرشنا، تحصیلدار مالتی دیگر بھی موجود تھے۔ ضلع کلکٹر کے احکامات پر بھیمگل میونسپل کمشنر کا BC ہاسٹل کا دورہ، صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھے اور طلباء کو متوازن غذا فراہم کرنے کی دی ہدایت۔ ضلع کلکٹر کے احکامات پر بھیمگل میونسپل کمشنر Y رام کرشن نے BC ہاسٹل کا معائنہ کیا، ہاسٹل کے اسٹور روم اور کچن کا معائنہ کیا اور عملے کو صفائی ستھرائی برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔
बच्चों को मियारी खुराक फराहम की जाए। दालें, सब्जियां, चावल और दीगर सामान जिन कमरों में रखा जाता है उन कमरों को साफ रखना चाहिए। किचन को हर वक्त साफ रखना चाहिए। खाना पकाने के बर्तन साफ रखे जाए। रोजाना किचन रूम की सफाई करें और हॉस्टल के अमले से तफसीलात दरियाफ्त की। इस प्रोग्राम में वार्ड ऑफिसर नवीन, इंचार्ज सैनिटरी इंस्पेक्टर जवान राजैया, ओमकार, हॉस्टल के अमले ने शिरकत की। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में यौम दस्तूर हिंद तकरीब का एहतमाम। तमाम शहरियों को मसावी हुकूक व मसावी मौक़े फ्राहम करने के लिए खिदमात अंजाम देने का ओहदेदारान व अमले ने लिया अहद। मेमार दस्तूर भीमराव अंबेडकर को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पेश किए खराज अक़ीदत। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट में यौम दस्तूर हिंद तकरीब का एहतमाम किया गया। कलेक्ट्रेट के अफसरान और अमले ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की मौजूदगी में ये अहद लिया। हम हिंदुस्तान के लोग तमाम शहरियों के लिए मुल्क को एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट सेकुलर जमहूर, मौक़े की मसावत, समाजी, इक़्तिसादी, सियासी इंसाफ, जज्बात, इजहार, अक़ीदा, धर्म और इबादत यकीनी बनाना और इनफरादी विक़ार, नस्ली इत्तेहाद और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगन के साथ काम करने का अज़्म किया। इस प्रोग्राम में कलेक्ट्रेट एओ प्रशांत, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर की भूख हड़ताल मील का पत्थर साबित हुई और केसीआर की जद्दोजहद वो भूख हड़ताल से तेलंगाना की तश्कील मुमकिन हो पाई। 29 नवंबर को बड़े पैमाने पर दीक्षा दिवस तकरीब मुनाकिद की जाएंगी। बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद मुस्तकर में वाक़े बीआरएस दफ्तर में बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी की क़ियादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बीआरएस के दीगर कायदीन ने शिरकत की। मीडिया से खिताब करते हुए बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी ने कहा कि 29 नवंबर तेलंगाना की आवाम के लिए तारीखी दिन, क्योंकि 29 नवंबर को ही बीआरएस सरबराह केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मरण व्रत का आगाज किया था और तेलंगाना के हुसूल के बाद यादगार दीक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हुसूल तेलंगाना के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और तेलंगाना की आवाम का सदियों का ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर कड़ी तनकीद की। గెలిపించినా గాని ఆ నాయకుడు అప్పుడున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా కాంగ్రెస్ పార్టీకి లొంగిపోయి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి చేస్తాంటే ఆ ఉద్యమాన్ని వదిలిపెట్టేసి తెలంగాణ మర్చిపోయినప్పుడు అప్పుడు తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ 2001లో కేసీఆర్ గారు మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం వారు చేసిన ఉద్యమం ప్రజలు అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని గ్రామ స్థాయి నుంచి పట్టణ స్థాయి నుంచి మన తెలంగాణ వస్తే ఏ విధంగా మనకు న్యాయం జరుగుతుంది, మన వాళ్ళని బెదిరించుకుంటూ బతున్నారు వాళ్ళు. నేను ఒకటి మనవిస్తున్నా, ఎవరైతే ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసినాం, ఎవరైతే అన్ని తెగించి కొట్లాడిండో ఆ వ్యక్తి భయపడాడు. ఆ భయపడిన వ్యక్తులు మాత్రమే మిగిలిన ఇప్పుడు మనకు. భయపడే వ్యక్తులు ఎక్కడ పచ్చగుంటే అక్కడ వేసే నాయకులు వెళ్ళిపోయారు. నేను మనవిస్తున్న ఒకటే మాట, గ్రామాల్లో తిరుగుతున్న పని ఎవరైనా చనిపోతే కానీ మాట్లాడలేకపోతున్నాం. మేము చాలామంది అన్నా నాకు మీరు వచ్చింది మాకు తెలియదన్నా, మేము వచ్చి కలుస్తామన్నా కొన్ని వందల వేల మంది అడుగుతున్నాం మమ్మల్ని. నేను మనవి చేస్తున్నా, కొంత మనం ఓడిపోయి ఒక అలసత్వంతో ఉన్నాం మనం, కానీ కదిలిస్తే వస్తారు అందరూ కూడా. నేను మనవి చేస్తున్నా అందరికీ కూడా, మా నాయకులు మనవి చేస్తున్నా, ఇవాళ జీవన్ రెడ్డి కానీ ప్రశాంత్ రెడ్డి కానీ మా నాయకులందరూ. बीआरएस के दौरे हुकूमत में सर्वे के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मौजूदा चीफ मिनिस्टर अब क्यों कर जात पात का सर्वे करवा रहे, बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी का सवाल। बालकोंडा एमएलए व साबिक़ा वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की रिहाइश का अपने आबाई गांव वेलपुर में जात पात की मर्दमशुमारी का सर्वे करने आने वाले ओहदेदारों को एमएलए ने रेवंत रेड्डी का एक वीडियो दिखाया जो अपोजिशन में थी। बीआरएस हुकूमत के जरिए किए गए सर्वे के खिलाफ बोल रहे थे और पूछा कि रेवंत रेड्डी अब ये सर्वे कैसे कर रहे।
ओहदेदारों से सवाल किया कि जायदादों, मंजिलों, गाड़ियों और दिगर गैर मनकूला असासों की तफसीलात आइन के विरासत में मिलने वाले राजदारी के हुकूक के खिलाफ कैसे जमा की जाती है। मुझे तफसीलात बताने में कोई एतराज नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी के कहे गए अल्फाज के लिए माफी मांगने के बाद ये कहते हुए कि बीआरएस हुकूमत का सर्वे गलत था, एमएलए ने मुतालिबा किया कि जाती तफसीलात जमा की जाए। बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तजवीज पेश की कि तफसीलात दर्ज की जाए ताकि सर्वे के जरिए अवाम को मुनासिब इंसाफ मिल सके, क्योंकि सर्वे को मुकर्ररा तारीख से पहले मुकम्मल करने की जल्दी में गलतियों का खतरा है। एमएलए ने कहा कि अगर सर्वे के नाम पर टीवी, फ्रिज, स्कूटर जैसी मामूली चीजों पर गौर करके अवाम से फलाही स्कीमात निकालने की कोशिश की गई तो बीआरएस पार्टी खामोश नहीं बैठेंगी। आइंदा 7 दिनों तक सर्दी की लहर, सर्दी से बचने का महकमा सेहत ने अवाम को दिया मशवरा, मौसमी बुखार और सेहत पर असरात के खदशात का इजहार। महकमा सेहत ने तेलंगाना अवाम के लिए आइंदा 7 यौम के लिए हेल्थ एडवाइजरी में कहा कि मौसमी बुखार और सेहत पर असरात के खदशात। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर की एडवाइजरी में शहरियों को मशवरा दिया कि तेलंगाना के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 15 डिग्री से कम होने लगा है, इसीलिए अवाम को सर्दी से महफूज रहना चाहिए। ओहदेदारों के मुताबिक मौसमी बीमारियों से हिफाजत के लिए गर्म रहने के अलावा ग़िज़ाई आदत व अतवार में तब्दीली लानी चाहिए। मौसमी तब्दीली के असरात में जुकाम, नज़ला, बुखार के अलावा आज़ा शिकने की शिकायत हो सकती है, जिस पर डॉक्टर से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। ओहदेदारों के मुताबिक अगर 5 साल से कम उम्र और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में ये अलामत है तो उन्हें फौरी डॉक्टर से रुजू होकर इलाज करवाना चाहिए। बेशतर अफराद जो इन अमराज का शिकार हो रहे हैं वो अज़खुद ठीक हो रहे हैं और अंदरून 1 हफ्ता ये अलामत खत्म हो रही है, लेकिन बद एहतियाती मर्ज को तवील कर सकती है। इसीलिए अवाम को आइंदा 7 यौम एहतियात की ताकीद की गई। एडवोकेट कासिम पर हुए हमले के खिलाफ विकला बरादरी का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी, खातियों की जल्द गिरफ्तारी व कड़ी सजा का किया मुतालिबा। वकील पर हमले के खिलाफ बार एसोसिएशन का एक हंगामी इजलास निजामाबाद शहर के कोर्ट के अहाते में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर विकला ने अपनी ड्यूटी का बाइकआउट किया। बादजा उन्होंने कोर्ट स्क्वायर और एनटीआर चौरास्ते पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा कि निजामाबाद शहर में लैंड माफिया बढ़ गया है और अमन सलामती को दरहम बरहम किया जा रहा है। उन्होंने मुतालिबा किया कि गुंडागिरी को रोका जाए और अमन बरकरार रखा जाए। उन्होंने वकील कासिम पर हमला करने वाले गुंडों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया और वाज़ेह किया कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक एहतजाजी प्रोग्राम जारी रहेगा। उन्होंने खबरदार किया कि रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में काउंसिल मेंबर राजेंद्र रेड्डी, वसंत राव, सुरेश, श्रीकांत, दिगर विकला मौजूद थे। రౌడీ మాఫియా, రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా ఇవాళ రాజ్యం వెళుతుంది. నిజామాబాద్ నగరంలో సామాన్య ప్రజలకు శాంతి భద్రత కరువైంది. ఇవాళ ఏదైతే తన యొక్క ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సీనియర్ న్యాయవాది మహమ్మద్ కాసిఫ్పై దాడి చేసి ఆయన బెదిరింపులు చేయడం జరిగింది. ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఇవాళ రౌడీజం ఏదైతే ఉన్నట్టు ఇవాళ న్యాయవాదిని బెదిరించి హత్యాయత్నం చేస్తున్న తరుణం ఉంది. మేము కంప్లైంట్ చేసి 2 రోజులు గడుస్తున్నా పోలీస్ యంత్రం ఇంతవరకు చర్యలు తీసుకోవాలి. తక్షణమే ఏదైతే దుండగులు రౌడీ షూటర్లు ఉన్నారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తాము. లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తమ ఆందోళన ఉధృతం చెప్తారు. ఇవాళ ఏదైతే అధికార పార్టీ అండదండలో నిజామాబాద్ నగరంలో రౌడీజం విర్రవీగుతుంది. దీన్ని అరికట్టాల బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని, హోంమంత్రిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా నిజామాబాద్ నగరంలో శాంతి భద్రతలు కాపాడని రౌడీల పట్ల కఠినంగా వివరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. గతంలో చూసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం వచ్చిన నాటి నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా న్యాయవాదులపై దాడులు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, తక్షణమే న్యాయవాద రక్షణ చట్టాన్ని కూడా రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తమ ఆందోళన బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ కావచ్చు, फेडरेशन ऑफ तेलंगाना बार एसोसिएशन आंदोलन तम आंदोलन। लक्ष्मापुर कैंप गांव की सड़क की तामीर के लिए एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने फंड्स की दी मंजूरी। सड़क के तामीरी कामों पर कासुला बालराज ने एमएलए का किया शुक्रिया अदा। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रुद्रपुर मंडल के लक्ष्मापुर कैंप गांव में सड़क की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी।
इस मकसद के लिए एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज ने मंडल कायदीन के हमरा तामीराती काम का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनाकिदा एक मीटिंग में पोचाराम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तमाम तबकात की तरक्की के लिए फलाही स्कीमात पर अमल आवारी कर रहे हैं। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अकबर नगर गांव में फूड साइंस कॉलेज का दौरा करने के बाद कहा कि जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें इंदिरा स्कीम के नाम पर डबल बेडरूम मकान दिया जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने तलबा से बात की और कई मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर बोधन सब कलेक्टर विकास महातव, तहसीलदार एमपीडीओ सुरेश, साबिक जेडपीटीसी गंगाराम, मार्केट कमेटी चेयरमैन सुरेश, जहीराबाद पार्लियामेंट डायरेक्शन कमेटी के रुकन दिगर कायदीन मौजूद थे। డిఎస్ఓ డిఎం సివిల్ సప్లైస్ అందరి సహకారంతో అత్యధికంగా వడ్లను కాంటబెట్టినటువంటి కాన్స్టెన్సీ మన బాన్సువాడ కాన్స్టెన్సీ. ప్రైవేట్ పోయేది పోతూ 3 నవంబర్ 1,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కాంటలైన మన కాన్స్టెన్సీలో 1,00,000 బయట కాంటాలు పోను. ఈ 1,00,000 క్వింటాలకు 1,00,000 టన్నులు అంటే 10 లక్షల క్వింటాలకి 500 కాడికి కేవలం బోనస్ 50 కోట్లు వచ్చింది బాన్సువాడ కాన్స్టెన్సీ. ఇంకెవరికైనా మిగిలి ఉంటే కూడా వారికి కూడా త్వరలోనే బోనస్ వస్తుంది. మరి రెండో పంట చూస్తుంటే నాటు మొదలైపోయినాయి. కొన్ని జిల్లాలో ఇక కాంటలే కాలేదు, ఆరబడతా ఉన్నారు, కాంటలు పెడతా ఉన్నారు, ఇంకా వాళ్ళ బాధ వాళ్ళు పడుతున్నారు. కానీ మన కాన్స్టిట్యూన్సీకి వచ్చేకల్లా అయ్యా ఫస్ట్ నాటు లక్ష్మీపూర్ క్యాంప్ ఉంది మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఫస్ట్. చాలా సంతోషం. మనం చూసుకొని చాలా మంది నేర్చుకుంటున్నారు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम करें और सफाई का खास ख्याल रखें। लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। अगले 7 दिनों तक तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर। बेशतर मुकामात पर दर्जे हरारत 15 सेंटीग्रेड से होगा कम। मौसमी बुखार का खदशा, अवाम एहतियात बरतें। महकमा मौसमियात। बीआरएस के सर्वे पर सवाल उठाने वाले और गलत अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मौजूदा चीफ मिनिस्टर अब क्यों जात पात का सर्वे करवा रहे। बालकोंडा एमएलए वेमुला का सवाल की तनकीदें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्क विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।